हाँ हाँ ब्रेकिंग है, रिफ्रेश करके मारना ब्रेकिंग। हैदराबाद कबड्डी खबर इस समय दी। विराट कोहली ने 117 दौड़ा बनाईਆਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੈਂਕੜਾ ਆਇਆ श्रेयस अय्यर ਦੇ ਬੱਲੇ ਤੋਂ। ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 398 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡਨਰੀ बैटिंग इस समय करनी होगी न्यूजीलैंड ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ 398 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗੀ। ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਬਰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 398 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਚੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 397 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸੁਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ, 397 398 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮੁਮਕਿਨ? ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਚੇਸ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 398 ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਟੀਮ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਰ 398 ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬੈਟਿੰਗ ਚੂਜ਼ ਕਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਖੇਲਾਂਗੇ। 300 ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਦਿਖੀ और इंडिया ने किया। 398 का टारगेट है न्यूजीलैंड, बिल्कुल लगभग 400 हो गया। बल्लेबाजी देख के तो बहुत मजा आया है ना, हमेशा आता रहा, लेकिन आज वानखेड़े में जिस तरीके से बैटर्स ने कमाल करके दिखाया टीम इंडिया के लिए, इसकी उम्मीद थी लेकिन इतनी नहीं थी, इतनी धमाकेदार नहीं थी। एक तो बड़ी खुशखबरी ये है कि विराट कोहली ने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। इससे पहले ये कीर्तिमान सचिन तेंदुलकर के नाम था, एक भारतीय के नाम था, उसके बाद विराट कोहली ने वो कारनामा कर दिखाया है। और अब जो काम बचा है गेंदबाजों का काम है गौरव, क्योंकि बल्लेबाजों ने उम्मीद से कहीं ज्यादा करके दिखाया इस पिच पर। अब गेंदबाजों से भी वही उम्मीद है, और जिस तरीके से पिच अभी नजर आ रही है, चैलेंज भी हो सकता है और हो सकता है कि अब रात में टर्न वहां पर मिले और इसका फायदा हमारे स्पिनर्स उठा सकते हैं। आपने कहा उम्मीद से ज्यादा, मतलब आपका जो एक एस्टिमेट था वो 320-30 के आसपास था। मतलब वानखेड़े की अगर पिच की हम बात करते हैं तो इतना टारगेट, मैक्सिमम टारगेट 350 तक मान के चलो, आपकी 350 मैक्सिमम होगा। लेकिन आज कमाल किया है, तो ये नहीं कि गेंदबाजी कमजोर थी न्यूजीलैंड की, गेंदबाजी बाकमाल रही है अभी तक पूरे टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड की। और आज गेंदबाज दिख नहीं रहे थे, सब कुछ आजमाया उनकी तरफ से, हर कोशिश की, हर तरह की बॉल डाली, लेकिन शॉर्ट बॉल को भी जिस तरीके से खेल रहे थे भारतीय बैटर, बहुत 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 बड़ा कमाल है। ठीक है, उनके बॉलर नहीं दिखे हैं। सुदेश दा कहना कि बॉलिंग जबरदस्त है पर दिखी नहीं न्यूजीलैंड दी, लगता इंडिया वाले तो दिखणगे। बिल्कुल बिल्कुल गौरव, टीम इंडिया ਦੀ ਬੋਲਿੰਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅੰਡਰ ਲਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਿ ਅੰਡਰ ਲਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵਿੰਗ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੋਲ ਸਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰੇਗੀ ਆਪਣੀ ਸੈਕੰਡ ਇਨਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਸਵਿੰਗ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਿਹੜੇ ਝਟਕੇ ਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੌਨਵੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੰਡਰਫੁਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਟਰ ਨੇ। ਕੌਨਵੇ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਕਸਵੈਲ ਦੇ ਵਾਂਗੂ, ਤੇ ਵਿਲੀਅਮਸਨ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਖੇਲ ਸਕੇ, 3 ਜਾਂ 4 ਮੈਚ ਖੇਲੇ ਨੇ, ਚੌਥਾ ਮੈਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਵਿਲੀਅਮਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੰਗਸਟਰ ਹੈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਲ ਮੈਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬੋਲਿੰਗ ਅਟੈਕ, ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਟੌਪ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। 4-5 ओवर, इनफैक्ट पहले ओवर ਦੇ ਵਿੱਚ भारतीय टीम ਨੂੰ विकेट्स मिलियां ने। एक पेस तिकड़ी का बहुत जिक्र हो रहा है क्योंकि उनके ऊपर अब नजर रहेगी, बल्लेबाजों ने काम कर दिया। अब बुमराह, शमी और सिराज क्या करते हैं, रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव क्या करते हैं, उसके नजर होगी। क्या शमी के ऊपर देखा जाए जिस तरह की उनकी बॉलिंग अभी तक रही है, या फिर बुमराह के लगता है कि बाकी टीम ने बहुत ज्यादा उनके ऊपर रिसर्च कर ली, उनको विकेट नहीं देते, रन भी नहीं बन पाते, लेकिन ये चीज दिखी है कि
17 विकेट्स तो हैं उनके पास अभी भी फिलहाल। जैसा कि मनप्रीत ने कहा कि स्पिनर्स को मदद मिलेगी इस पिच पर, लेकिन सबसे पहला काम होगा यहाँ पर फास्ट बॉलर का, और हमारी तिकड़ी बहुत अच्छे फॉर्म में है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी है जसप्रीत बुमराह के कंधों पर। एक तो प्रेशर बनाते हैं, भले विकेट नहीं निकाल पाए लेकिन उनका प्रेशर, मनोवैज्ञानिक दबाव जसप्रीत बुमराह हमेशा हर मैच में बनाते रहे हैं। लास्ट मैच में जिस तरीके से 2 विकेट झटके उन्होंने, उससे वो कमबैक सा करते दिखे कि मैं सिर्फ प्रेशर नहीं बनाता, मैं कम रन रेट नहीं रखता, बल्कि मैं विकेट भी चटका सकता और किसी भी टाइम निकाल सकता। तो आज सबसे पहला काम होगा जसप्रीत बुमराह का। उनको अगर विकेट मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर वो कम रन देते हैं तो इससे भी दबाव में आएगी। और आज हमने देखा, पहली बार इस पूरे टूर्नामेंट में हमने देखा, हालांकि न्यूजीलैंड हारी, लेकिन आज जिस तरीके से टीम बिखरी हुई थी, एक मनोवैज्ञानिक दबाव है न्यूजीलैंड की टीम पर, और इसी को इनकैश करना होगा अब गेंदबाजों को भी। तो आप जसप्रीत बुमराह हो, मोहम्मद शामी हो, मोहम्मद सिराज हो, इनको सबसे पहले ये मनोवैज्ञानिक दबाव का फायदा उठाना होगा, जल्दी विकेट चटकाने होंगे, ताकि स्पिनर्स को, जैसा कि बार बार कहा कि मदद मिलेगी। स्पिनर्स मुझे लगता है कि यहाँ पर फिर से बहुत बड़ा एक फैक्टर साबित होंगे इस पूरे इस पिच पर, इस मैच में। लेकिन उससे पहले इस तिकड़ी को बहुत अच्छा काम करके दिखाना होगा, और उम्मीद है करके दिखाई। देखिए, एक आपने मनोवैज्ञानिक तौर पर किस तरह से प्लेयर खेलते हैं। जब मैच का स्टार्ट हुआ, जिस तरह से टॉस हुआ, और उसके बाद न्यूजीलैंड के कैप्टन विलियमसन ये कहते नजर आए कि सेम सिचुएशन है जो 4 साल पहले वर्ल्ड कप में थी, और उन्होंने कहा कि हाँ, एक लोकेशन डिफरेंट है लेकिन तकरीबन लगभग वही सेम सिचुएशन है। एक तरह से वो माइंड गेम खेलने की कोशिश थी। फर्स्ट फेज में तो फेल हो गई। बिल्कुल, फर्स्ट फेज में नहीं, पूरे ही हमने देखा पूरे मैच में कहीं भी केन विलियमसन नजर नहीं आए। एज ए कैप्टन वो कहीं मुझे स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आए। और वहीं अगर हम रोहित शर्मा की बात करते तो कॉन्फिडेंट नजर आ रही पूरी टीम। और ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है इस पूरे टूर्नामेंट में, उसने मनोवैज्ञानिक दबाव दूसरी टीमों पर बनाया है। आज भी हर कोई जुड़ा हुआ था, दूसरे खुशी बांट रहा था। पूरी टीम, एक जोश है, जो जोश हम फैंस में देखते थे वो जोश अब टीम में वैसा जोश नजर आ रहा है। तो एकजुट है टीम, और उसका फायदा मुझे लगता है गेंदबाजों को मिलेगा। हमने देखा कि सिर्फ गेंदबाज ही नहीं, फील्डर भी नहीं थे, कैच ड्रॉप किए गए, फील्डिंग अच्छी नहीं, मिस फील्ड बहुत हुआ। वो तालमेल न्यूजीलैंड की टीम में दिखा नहीं, और ये बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक फैक्टर मैं कहूंगी इस पूरे मैच में न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के सामने था कि वो टिक नहीं पाए। इसके पीछे बड़ी वजह थी कि होम ग्राउंड था रोहित शर्मा का, इंडिया में टूर्नामेंट हो रहा है, दूसरा कि लगातार भारतीय टीम जीत रही है, लगातार अगर स्टेज लीग की हम बात करते 9 के 9 मैच जीते हैं, न्यूजीलैंड को भी इससे पहले हराया है। तो बहुत बढ़िया मुकाबला यहाँ हमने देखा है। चलिए, दो सेंचुरीज हमें देखने को मिल गई। इनफैक्ट अगर शुभमन गिल रिटायर्ड हर्ट ना होते तो शायद उनका भी तीसरी शतक आ जाता। सेंचुरीज आ चुकी हैं, क्या अब विकेट, यानी कि बॉलर्स का पंजा भी देखने को मिलेगा विकेट वाले सीन में, कि कोई बॉलर 5 विकेट लेने वाली स्थिति में आज जा सकता है? मुझे लगता है ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी तक सभी गेंदबाजों ने हमें चौंकाया है, और ऐसे ऐसे गेंदबाजों ने चौंकाया कि हमने देखा रविंद्र जडेजा, वो भी अपनी छाप इस पंजे के साथ छोड़ चुके थे। आज की जो पिच है मुझे लगता है कि बहुत चौंकाएगी। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, गेंदबाज बैठकर सोचें कि जब हम थे वहां पर तो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे थे। तो आज देखना गेंदबाज क्या कर सकते हैं। हमारे बल्लेबाजों ने छाप पूरी तरह से छोड़ दी है गौरव, अब गेंदबाजों की बारी है। मैं फिर कहूंगी कि जो पिच का उछाल था वो अब बिल्कुल अलग हमें दिखाई देगा, जिस तरीके से हम लगातार सेकंड इनिंग में उस व्हाइट बॉल के साथ करिश्मा करेंगे भारतीय गेंदबाज और स्पिनर्स से बहुत उम्मीदें हैं। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ कि पहला झटका जो देना होगा फास्ट बॉलर्स को, तिकड़ी को, वो या तो विकेट निकाले, विकेट अगर नहीं निकाल पाए तो कम से कम मनोवैज्ञानिक दबाव बनाए, क्योंकि बहुत बड़ा टारगेट है, बहुत आसान टारगेट नहीं है। 398 का जो टारगेट दिया है वो बहुत बड़ा टारगेट है, लक्ष्य बहुत बड़ा है। भले उनके पास ऑलराउंडर है, बैटर्स हैं, उनके कैप्टन ने 4 मैच भले खेले हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट उनका बहुत अच्छा है। बिल्कुल, तो कॉनवे का जिक्र कर रहे थे, मेरे को लग रहा है कि मिशन कॉनवे का पूरा बनाना होगा कि इनको आउट कीजिए, रविंद्र जो है उनके रचिन रविंद्र, उनको आउट कीजिए। लिस्ट बहुत लंबी है, और विलियमसन है वो एक छोर संभाल के रखते हैं, थोड़ा स्लो खेलते होंगे, बात अलग है। उसके बाद डेरिल मिचेल का हम जिक्र कर रहे हैं पिछले मैच में, और ग्लेन फिलिप्स का हम जिक्र करते हैं। बहुत सारी एक लंबी, ये 3 जो नाम है, ये 3 नाम बहुत महत्वपूर्ण नाम है, इन तीनों पर फोकस करना होगा। केन बहुत लगातार अच्छा खेल रहे हैं और मिचेल बहुत अच्छा खेल रहे हैं। इन दोनों पर दबाव हमें बनाना होगा। रचिन, क्योंकि लगातार वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और लगता है कि वो इस तरह की पिचेस में ढल चुके हैं, स्पिनर्स के सामने भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इन तीनों पर ये तिकड़ी है, इन बैटर्स की तिकड़ी को तोड़ना होगा। हालांकि उनकी बैटिंग लाइन न्यूजीलैंड की बहुत लंबी है, भारतीय बैटिंग लाइन से भी बहुत लंबी उनकी बैटिंग लाइन है, तो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो है उनके पास भी, हम इतने हल्के में नहीं ले सकते। लेकिन
फिर इसको कॉन्फिडेंस कहे या और कॉन्फिडेंस कहे कि हमारे गेंदबाजों ने क्योंकि इतना अच्छा करके दिखाया है अभी तक के टूर्नामेंट में, तो हमें लगता है कि कैसा भी बैटर हो अगर वो चले तो फिर चलेंगे और फिर धराशायी कर सकते हैं किसी भी अच्छी ये भी कहा जाता है कि अगर 400 का लगभग 400 का टारगेट हो वो किसी भी कंडीशन में ग्राउंड में या पिच पर मुश्किल ही होता है कि आप बहुत कम चांसेस होंगे कि साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का हो या 434 उन्होंने चीज कर लिए, बहुत कम चांसेस होते हैं कि ऐसा मौका है। मैं बॉलिंग का जिक्र कर रहा था, मनप्रीत लग रहा है कि मिशन कॉनवे होना चाहिए ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਕਟਸ ਦਾ पंजा भी देखने को मिलेगा। गौरव, ये मिशन कॉनवे नहीं होगा, ये मिशन न्यूजीलैंड होगा कि न्यूजीलैंड ਨੂੰ ਤਾਰਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਕੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਉਹੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਦਰਦ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਰਲਡ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 2019 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੋਵੇ। ਸੁਦੇਸ਼ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਮੈਚ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੈਚੁਰਲ ਗੇਮ ਖੇਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮੈਚਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਿਖਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਾਂ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ क्रिकेट ਦੇ ਵਿੱਚ देखिए ਤਾਂ सुदेश ये तो एक चीज है कि जो टीम इंडिया की परफॉर्मेंस है वो तो चैंपियन वाली ही है कि आप पहले मैच से लेकर आज तक के सेमीफाइनल के मैच तक देखिए, आपको लगेगा कि हाँ ये टीम है जो चैंपियन बन सकती है, डिजर्व करती है। किसी दिन खराब हुआ, फाइनल में खराब हुआ, वो बात अलग है। अभी तक हमने यही देखा है गौरव की कमजोरी क्या है भारतीय टीम की कि वो नॉकआउट मुकाबले में वैसा परफॉर्म नहीं कर पाती, वो लगातार एक लेवल विराट कोहली के ऊपर भी था कि वो नॉकआउट मुकाबलों में जाके उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं कर, आज वो भी खत्म हो। वही मैं कह रही कि आंकड़ों पर और हम हिस्ट्री पर नहीं जाएंगे क्योंकि बदली हिस्ट्री। 20 साल से लगातार हम वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को नहीं हरा पा रहे थे, लेकिन 20 साल बाद 2 दशक के बाद हमने वो कर दिखाया, और बाकमाल कर दिखाया था मनप्रीत। हमने बहुत शानदार जीती, ये नहीं कि कोई तुक्का लगा है या फिर आज ये किसी का भाग्य ने साथ दिया। वो आज हमने देखा बैटिंग ऑर्डर जो था हमारा, भले ही गिल वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए, वो रिटायर्ड हर्ट हुए, लेकिन उसके बावजूद जितने भी बैटर्स आए सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और सबसे अच्छी उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो उनका आत्मविश्वास है, उस पर नजर डालिए, वो टीम चैंपियन टीम ही लग रही है। और जिस तरह का माहौल है, आपने देखा होगा कि जब श्रेयस अय्यर ने सेंचुरी की तो रोहित शर्मा कैप्टन है और वो एक मजाकिया अंदाज में उनको प्रेज करते हुए नजर आए। हाँ, वो मिमिक्री टाइप था, वो मामला अलग तो था। श्रेयस अय्यर की एक इमेज है कि वो बहुत लेजी हैं और उनमें टेक्निक है बट वो बहुत लेजी हैं, तो उसी को मिमिक्री के तौर पे वो बता रहे थे। पर ये ड्रेसिंग रूम का माहौल क्या है कि आपका लीडर किस तरह से परफॉर्म कर रहा है या किस तरह से वो रिएक्ट कर रहा है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। इसके ऊपर इसके पीछे एक बहुत बड़ा मैसेज भी है कि ड्रेसिंग रूम में हमारी टीम में किसी तरह का कोई मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं है। हम चैंपियन की तरह पहले दिन से उतरे हैं और चैंपियन बनकर ही निकलेंगे। आज सेमीफाइनल है, लेकिन सभी प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज और वो इजी जो एक माइंडसेट था, बहुत इजी माइंडसेट के साथ वो खेले हैं। ड्रेसिंग रूम का माहौल भी बिल्कुल वैसा ही, भले ही रोहित शर्मा आउट हुए या फिर गिल को इंजरी हुई, उसके बाद भी वो टेंशन नहीं दिखी किसी भी खिलाड़ी के चेहरे पर, बिल्कुल किसी भी ओवर में वो दिखा नहीं। और ये पिच को लेकर फिर बात आएगी मनप्रीत, क्योंकि पिच के ऊपर हमें अब वो टर्न देखने को मिल सकता है, पूरी उम्मीद है कि वो टर्न दिखेगा। और इस चीज का फायदा हमारे स्पिनर्स हमेशा से उठाते हैं, क्योंकि हमारी गेंदबाजी की सबसे बड़ी ताकत ही स्पिनर्स रहे हैं। हाँ, इसमें एक प्लस पॉइंट ये हुआ, एड ऑन ये हुआ कि हमारी तिकड़ी जो फास्ट बॉलर्स हैं, जो पेसर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा करके दिखाया। साउथ अफ्रीका जैसी टीम को अगर वो धराशायी कर सकते हैं, न्यूजीलैंड की टीम को वो रोक सकते हैं, तो आज तो पहाड़ जैसा एक लक्ष्य रखा है, तो उसको भेद पाना मुझे लगता है ऐसे गेंदबाजों के लिए बहुत मुश्किल। चलिए मैं ये कह रहा हूं कि 398 के टारगेट के बाद एक चीज तो क्लियर है कि क्या तैयारी कर लें अहमदाबाद की और उस स्टेडियम की टिकट खरीद ली जाए, फ्लाइट बुक करवा ली जाए कि चलिए अहमदाबाद चले, यहाँ तो जीत गए। बिल्कुल गौरव, अहमदाबाद जाना पैना है क्योंकि कप जो जितना टीम इंडिया ने, इस करके उस जगह ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੂਗੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਝਟਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ टारगेट ਨੂੰ है वो डिफेंड करेगी। चलिए एक छोटा सा सवाल, क्या 300 तक पहुंचेगी न्यूजीलैंड की टीम? ये समझा जाए कि भारतीय टीम की जीत यहाँ पर एक बड़ी जीत होगी, 100, 150, 200 रनों से भी हो सकती है।
मुझे लगता है कि बड़ी जीत होगी और बड़ी जीत होनी भी चाहिए, क्योंकि अगला मुकाबला फाइनल में तो टीम इंडिया का होगा। तो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका कोई कमजोर टीमें तो नहीं है। अभी जो 4 टीमें सेमीफाइनल तक पहुंची तो चारों ही दावेदार टीमें थी। ये नहीं कि कोई किसी मैच में उलटफेर की वजह से पहुंच गई है। कभी अक्सर ऐसा होता था कि कमजोर टीमें उलटफेर का शिकार करके बड़ी टीम को, तो कोई एक टीम वहां चलेगी। लेकिन इस बार कोई भी कमजोर टीम नॉकआउट में नहीं पहुंची है। तो यहाँ अगर सेमीफाइनल जीतते हैं, एक बड़े अंतर से जीत हासिल करनी चाहिए। इससे आपके आत्मविश्वास पर फर्क पड़ता है। जैसा हमने देखा कि 9 मैच जीते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस आज टीम में नजर आ रहा है। उसी वजह से आज 398 का टारगेट देने में हम कामयाब रहे। तो मुझे लगता है एक बड़ी जीत होनी भी चाहिए। कितने रनों की जीत है? उम्मीद है कि 150 रन दी, 100 रन दी, इस तरीके से 300 के आसपास 250 रन ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜੀ ਗੌਰਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ।